Okay, so yesterday we have seen about the wealth management, portfolio management, and then the NRI remittances. Okay, so now we will going to see about the technology in banking. I think this is also one of the topic in your like project. Someone have taken this topic like technology in banking, or we can say the mobile banking. So it will be somewhat same only. Okay. Wait. Okay, so now we'll start with the technology in banking. What exactly the technology is being used and how it will be helpful for the banking sector. That all part we will going to see in this point. Okay. So first one here, electronic banking. See, अभी सब लोग मतलब I think even you people, whatever your fund related or the finance related activity you are doing, I really don't think so. Like you are going majority of the time you are visiting the bank and then you are doing the activity. ऐसा नहीं होता रहेगा शायद से. ओके आप लोग भी जितना होता है उतना यू आर ट्राइंग योर बेस्ट कि चलो मोबाइल से ही करे. ओके कोई क्या मतलब कुछ भी पेमेंट ट्रांसफर वगैरह करना है तो सेम वे दैट हाउ दिस टेक्नोलॉजी इज बीइंग यूजफुल, उससे क्या चेंजेस हुआ है दैट वी विल गोइंग टू से इट नाउ. ओके सो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इट इज कॉल्ड एज ई बैंकिंग. ई बैंकिंग का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. ध्यान में रखो, ई बैंकिंग इज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द प्रोसेस बाय विच अ कस्टमर मे परफॉर्म banking transaction electronically without visiting a brick and mortar institution. ठीक है. In simple term, it does not involve any physical exchange of money, but is all done electronically. E-banking is generic term for delivery of banking services and products through electronic channels such as internet, the telephone, and the cell phone. So electronic banking मतलब यहाँ पे अपने हाथ में कैश नहीं है. though we have money but it is not with us. that money, that physical money is with the bank only. तो हम लोग वो वहां पे फिजिकल मनी का ट्रांसफर नहीं कर रहे. वी आर डूइंग द मनी ट्रांजैक्शन but that physical exchange of money is not happening during this electronic banking. Okay, we are just giving them the order, or we are just and then that machine is receiving our order and as per that they are acting. Okay, so for this kind of electronic banking we are using the what we can say the tools like internet, then the telephone and the cell phone, right? So e-banking has the following advantage: round the clock banking. E-banking facilitates performing of basic banking transaction by customer round the clock globally, worldwide, 24 hours and 7 days a week. Banking services are made possible. In fact, there are no restricted office hours for e-banking. Yes, it is very what we can say the very needed advantages we really got because of electronic banking, because the people who are working and they cannot visit to the bank. आप लोगों ने भी even ऑब्जर्व किया रहेगा, if we are visiting to the bank, स्पेशली इन एसबीआई आई हैव ऑब्जर्व दिस थिंग. अगर हम लोग बैंक में किसी भी काम के लिए जाते हैं, सो इट विल नेवर गोइंग टू हैपन लाइक बैंक में आपका काम विद इन 5 मिनट्स में हो जाएगा. नहीं, ऐसे नहीं रहता है. it will going to take a lot of time, and even we need to check with their lunch hours. We need to check with their at what time they are coming. तो आपको एक शायद से हाफ डे तो लीव लेना ही पड़ता है करके. but because of this electronic banking, whatever is the small the transaction, we can do it sitting at a home, like during the evening time or the night time also we can do this kind of transactions. Okay, so therefore they are saying the round the clock banking is possible because of the technology. Then the convenient banking. E-banking increases the customer's convenience. No personal visit to the branch is required. Customer can perform basic banking transaction by simply sitting at their office or at home through PC or laptop. Customers can get drafts at their email call. Thus, e-bank facilitates home banking also. ठीक है. इवन इतना मतलब यहाँ पे उन्होंने कहा कन्वीनियंट बैंक आप कहीं पे भी बैठ के, आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, लाइक लैपटॉप है, तो आप वहीं से ऑफिस में रहने दो, घर पे रहने दो, इवन आप रास्ते में चलते चलते भी करना चाहते तो दैट वे आल्सो यू कैन डू द ट्रांजैक्शन. ओके, एंड व्हाट दे आर सेइंग हियर, इवन अगर आप लोगों ने एक चीज नोट किया रहेगा कि जो भी बैंक के मैसेजेस आते हैं दैट बेसिकली यू विल गोइंग टू गेट इट इनटू योर ड्राफ्ट साइड ऑन योर ईमेल आईडी. तो वो भी हम लोगों को वहां पे बताते कि इतना ट्रांजैक्शन हो चुका है आपके ये अकाउंट में करके. इवन समटाइम्स यू विल गोइंग टू गेट द मैसेजेस आल्सो कि आपका अकाउंट में से इतना ट्रांजैक्शन गया है करके, ये आपका ही है या नहीं है, आपने ही किया है या नहीं है. तो वहां पे यस और नो में रिस्पॉन्स रहता है करके. सो दैट वे दे आर इवन सेंडिंग द मैसेजेस टू अस. देन ओटीपी से हम लोग को पता लग जाता है कि मतलब ओटीपी के थ्रू
जो बोलते हैं ना हम लोग कि वहाँ पे लीगली वहाँ पे कुछ होना चाहिए, लीगल इन द सेंस कि वेरिफिकेशन के लिए। सो दे आर सेंडिंग अस द ओटीपी कि हाँ ठीक है हम लोग भी कर रहे हैं क्या। So this way they are basically doing this kind of a banking. Then the speed banking. The increased speed of response to customers' requirement and the e-banking will lead to a greater customer satisfaction and handling a larger number of transactions at a lesser time. Yes, यहाँ पे क्या होता है कि एक तो customer also will going to get satisfied because they are sitting at the home and they are doing their transaction activity. किसी को बैंक में जाके rush करने की जरूरत नहीं है. Okay, so within a few time you will going to do your banking activities. Then the low cost banking. The operational costs have come down due to technology adoption. The cost of transaction through internet banking is much less than any other traditional mode here. Yes, any other traditional mode में जितना खर्चा लगता था, जैसे खर्चा मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग कि मुझे जाना है बैंक में विजिट करना है तो मुझे बस से जाना पड़ेगा, ऑटो से जाना पड़ेगा, वहां पे रुकना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे फिर वेट करना पड़ेगा, उतना टाइम चला जाएगा। सो दैट काइंड ऑफ अ कॉस्ट विल नॉट गोइंग टू हैपन डियर। जो अपना ट्रेडिशनल मोड ऑफ पेमेंट है बैंकिंग का, तो अभी उससे ये काफी बेटर है, काफी मतलब बहुत ज्यादा बेटर है कि जिससे कॉस्ट भी ऑलमोस्ट कम हो गया बैंकिंग करने के लिए। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबल बैंकिंग। द इंक्रीज स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स टू कस्टमर्स रिक्वायरमेंट अंडर ई बैंकिंग, vice versa, branch banking can enhance customer satisfaction and consequently can lead to higher profits by handling large number of customer accounts. Bank can also offer many cash management products for the existing customers without any additional cost. ठीक है, तो प्रॉफिटेबल बैंकिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक तो चीज ऐसी होती है कि लाइक वी आर एबल टू satisfy the customer requirement. और हर एक बैंक के लिए when it will going to profitable when that bank will going to have the large number of customer, large number of account holders only, and therefore each and every banks are trying their best to give them the good e-banking facility, so that वहाँ पे अलग अलग ई बैंकिंग फैसिलिटी को देखते हुए वो फैसिलिटी को यूज करते हुए the customer will going to get satisfied and therefore they will going to prefer to be with that particular bank. अगर आप लोग ने किसी कोऑपरेटिव बैंक का देखा रहेगा तो जनरली कोऑपरेटिव बैंक में ज्यादा इंटरनेट बैंकिंग का फैसिलिटी नहीं रहता है, तो वहां पे उनको कस्टमर मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। इवन इफ दोज काइंड ऑफ अ बैंक, अभी मतलब पहले तो लिटरली उनका एटीएम भी नहीं था, लेकिन अभी एटीएम सेंटर वगैरह उनका आ चुका है, एटीएम भी है। सो दिस वे इफ दे विल आल्सो गोइंग टू इम्प्रूव इन देयर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फैसिलिटी, देन आई थिंक वो लोग भी बहुत जल्दी मतलब बूस्ट करेंगे, वो लोग भी ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं as other commercial banking are getting. Okay, then the quality banking. E-banking opens new landscapes for providing efficient, economic, and quality service to the customer. E-banking allows the possibility of improved quality and an enlarged range of services being made available to the customer here. So obviously we are able to get the quality of banking, मतलब services अच्छा मिलता है हम लोगों को, और a large number of services we can complete it through the electronic banking. Then the service banking. E-banking creates strong basic infrastructure for the banks to embark upon many cash management products and to venture in the new field like e-commerce, EDI, example instant credit, one-day credit, immediate payment of utility bills, immediate payment of utility bills, then instant transfer of funds, etc., would be made possible under e-banking. In brief, it adds convenience to the entire banking services apart from widening the range of services. Whatever services is being provided by the bank, so they are what we can say कि वो बहुत ज्यादा wide range of services they can provide to their customer, और उसकी वजह से customer satisfaction will going to increase. So somehow because of this e-banking, different services is मेड अवेलेबल टू द कस्टमर, और वहां पे बैंक को कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं कि हर एक कस्टमर को आके एक्सप्लेन करे चलो ये फॉर्म भरो ऐसा करो करके, वो सब नहीं रहेगा। इट इज ऑल हैपनिंग थ्रू द टेक्नोलॉजी, वन एप्लीकेशन विल बी देयर, वहां पे फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट फिल करना है, सबमिट कर देना है, देन दैट्स इट। वहां पे किसी के साथ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, ना किसी को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है। So this kind of a good services within a short of time, it has been made possible because of electronic banking. And then the virtual banking. The salient feature of virtual banking are the overwhelming reliance on IT and absence of physical bank branches to deliver banking services to the customer. Yes, we can say that e-banking is also the kind of a virtual banking only. तो जैसे अगर तुम्हें कुछ पता नहीं चलता है तो कोई एक वीडियो देखो आप लोग, उसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि क्या करना है।
then even if you'll go on the bank site, उनके website पे जाओगे, and you really don't know like how to do this kind of a transaction, so they are showing certain steps and all. So that will going to help you out to understand like how this activity can be performed if you really wanted to get avail of this kind of a facility. Then nowadays almost every banking transaction that once had to be done in person can be done over the internet. Despite the advantages of online banking, such as saving trips to a local bank and avoiding long lines, a considerable number of people will prefer the more traditional form of banking in person. Often, the reasons stem for the following disadvantages they are incurred when banking online. But still, what they are saying here, कि though we are saying there are many facilities of electronic banking, कि जो बहुत convenient है, but still there are many people who are not preferred to go with the e-banking. They are continuing with their traditional banking activities only. तो ऐसा क्यों? मतलब यहाँ पे उन लोगों को किन चीजों में वहाँ पे डिसएडवांटेज है या फिर दे आर नॉट कंफर्टेबल विद इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. यू नो ये जैसे इवन इफ यू गोइंग टू आस्क मी, दो आई एम एजुकेटेड वन, बट लेकिन जब इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, आई नेवर यूज्ड टू ट्रस्ट कि पता नहीं कोई मतलब क्या पैसा चुरा लेगा, क्या पता नहीं पैसे कहाँ से कैसे चले जाएंगे, तो ये कैसे क्या मोबाइल से डायरेक्टली हम लोग इतना बड़ा अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं वगैरह. तो इवन आई यूज टू गेट स्केर्ड. तो ऐसा रहता है कि लोगों को उतना वो कंफर्ट लेवल नहीं रहता है, बट द थिंग लाइक वंस यू विल गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट, तो जो डर है वो आपका निकल जाएगा, बिकॉज द थिंग्स आर हैपनिंग इन अ स्मूथ मैनर एंड देन यू आर रियलाइजिंग कि नहीं ऐसा नहीं रहता है करके. मतलब आप लोग ये वाला बिहेवियर आपके मम्मी पापा का भी ऑब्जर्व किया रहेगा. जब ऑनलाइन बैंकिंग की बात आती रहेगी तो वो लोग बोलते रहेंगे नहीं कोई जरूरत नहीं, वहां पे जाके भर के आ जाए या फिर उनके हाथ में दे दे. हम लोग पैसा वहां पे बोलेंगे कि नहीं विड्रॉ कर लो और दे दो किसी को, और वहां पे नहीं गया तो अपना पैसा तो चला गया. So that kind of a psychology the people may going to have here. So now we're going to say like what exactly the disadvantages of the electronic banking. So the first one here, internet connection. Yes, this is true. Not everyone enjoys the luxury of having a stable and the fast internet connection at home. Aside from having a personal computer or laptop, having stable internet access at home is a basic prerequisite to perform electronic banking. Of course, people can always use a public computer with the internet access. However, the security of public computer is always a concern. ठीक है, इसके लिए उन्होंने कहा है कि हम लोग मतलब बाहर से भी कर सकते हैं, चलो साइबर कैफे में जाके हम लोग करके आएंगे, लेकिन वहां पे इतने सारे अलग अलग लोग आते हैं तो थोड़ा सिक्योरिटी का इशू रहता है. पता नहीं किसी ने कुछ मतलब पता लगा दिया कि क्या अकाउंट है, क्या आईएफएससी कोड है करके, तो थोड़ा वो डर लगता है. इसके लिए उसका मेन कंसर्न है कि इंटरनेट एक तो होना चाहिए. अगर आपके पास मोबाइल है, आपके घर में कंप्यूटर लैपटॉप है, देन यू शुड हैव द internet. Okay, then computer know-how. Conducting a successful electronic banking transaction, like paying bills online, require basic computer skill and knowing the way around the internet. Being computer literate is not common to everyone, especially seniors who might not have grown up using the computers, and this is a major disadvantage to electronic banking. Yes, मतलब अगर आप लोग कोई ऐसा ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले होता है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है. देन यू शुड नो लाइक हाउ टू यूज इट. तो हर एक के पास तो वो नॉलेज नहीं रहता है ना. मतलब बेसिकली उन्होंने कहा कि सीनियर जैसे अभी तुम लोगों को पता है कि कैसे यूज करना है, लेकिन जितना मुझे लग रहा है कि इवन बहुत सारे लोगों को अभी तक ये भी नहीं पता रहेगा. दो यू आर डूइंग योर बीबीआई कोर्स, बट आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू मे नॉट बी नोइंग कि मुझे अगर आप लोगों का अकाउंट रहेगा तो आई थिंक आप लोग ये सब ट्रांजेक्शन करते रहोगे. अगर आपका अकाउंट नहीं है ना, तो शायद आप लोगों ने अभी तक इंटरनेट बैंकिंग वगैरह यूज करना स्टार्ट नहीं किया रहेगा. एम आई राइट स्टूडेंट? सबका अकाउंट है क्या लेकिन बैंक में? यस मैम. तो जिनका अकाउंट रहेगा वो लोग करेंगे नेट बैंकिंग वगैरह, उनको पॉसिबल रहेगा, उनको समझ में आएगा मतलब कि कैसे परफॉर्म करना है वो सब जो भी ट्रांजेक्शन है वो. लेकिन जिनका नहीं रहेगा दे मस्ट बी गेटिंग डिफिकल्टी. और बिकॉज ये मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आई हैव ऑब्जर्व लाइक व्हेन वी स्टार्टेड विद दिस काइंड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट फॉर द फीस एंड ऑल, तो बहुत सारे बच्चों ने ऐसे कहा कि मैम हम लोगों का अकाउंट नहीं है. तो मैंने बोला ठीक है चलो पेरेंट्स का तो अकाउंट रहेगा उनके थ्रू कर लो. नहीं उनका भी नहीं है, तो इसके लिए फिर ऑफलाइन जाना पड़ेगा, मतलब ऑफिस में जाके पेमेंट किया बहुत सारे लोगों ने. तो वैसा भी रहता है. ओके, देन द डिलेड स्टेटमेंट. when performing online banking there is not a standard at which payment made will show up on online bank statement. They might show up
2 to 3 days later, depending upon the bank. When banking in person, one can generally get the exact status of bank account. I think मुझे कभी डिलेट स्टेटमेंट नहीं मिला. आप लोगों का क्या ऑब्जर्वेशन है? मतलब जो ट्रांजैक्शन होता है उसका स्टेटमेंट जल्दी मिल जाता है मेरे हिसाब से. व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ? Yes, ma'am. है ना, इमीडिएटली, मतलब जैसे ट्रांजैक्शन हुआ नहीं इमीडिएटली वो आता है. इमीडिएटली पॉपअप होके वो फी रिसिप्ट, आपका जो रिसिप्ट है वो आ जाएगा कि ये अकाउंट पे अब हम लोगों ने मतलब ट्रांजैक्शन किया है करके. सो आई नेवर फेस दिस काइंड ऑफ डिसएडवांटेज लाइक कि डिलेड स्टेटमेंट मिलता है करके, वो मुझे नहीं मिला. Next year, security concern. Yes, this is true. One of the biggest disadvantage of doing electronic banking is the question of security. With the prevalence of keyloggers, then again phishing emails, एक है ट्रोजन्स, नहीं पता, ट्रोजन्स एंड द अदर ऑनलाइन थ्रेट, it's natural for people to be concerned with the security of their identity, funds, and electronic banking transaction. Using antivirus and the similar program is not foolproof. Yes, this is true. People worry that their bank accounts can be hacked and accessed without their knowledge, or that the funds they transfer may not reach the intended recipient. Although it is rare nowadays, with enhanced security measures, the street still exists. भले कितना भी सिक्योरिटी के आधार कार्ड के साथ लिंक कर दो, ये सब कुछ किया हुआ है, लेकिन अभी भी हैकिंग होता है. अभी भी ऐसा है कि लोगों का पैसा ऑटोमेटिकली अकाउंट में से लिंक हो जाता है. ठीक है, अभी भी ऐसा होता है. तो इसके लिए सिक्योरिटी कंसर्न इज द मेन थिंग हियर. इसके लिए मतलब जो सीनियर्स का मैं जितना मैंने खुद ने ऑब्जर्व किया हुआ है, दे आर ऑलवेज प्रिफरिंग द ट्रेडिशनल मेथड. व्हाई इट इज सो? बिकॉज दे आर मोर कंसर्न अबाउट द सिक्योरिटी वन. अदरवाइज इतना नहीं. इवन मुझे खुद को स्टार्टिंग में बहुत डर लग रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि नहीं करना चाहिए, नहीं करके सिक्योरिटी के वजह से. बट ओके, चलो अभी तो करना ही चाहिए, सब लोग कर रहे हैं तो हम लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया. ओके. Then the loss of human touch. Yes, some people still value talking and interacting with the bank tellers, manager, and the other bank clients. Electronic banking takes the majority of this human interaction away, leaving the banking experience as a very hands-off, impersonal process here. Okay. लॉस ऑफ ह्यूमन टच मतलब यहाँ पे हम लोग किसी का गाइडेंस नहीं दे रहे हैं, किसी के साथ बात नहीं कर रहे, अपने अपने एंड से हम लोग पूरा ट्रांजैक्शन कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाट हैपनिंग इन योर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. Okay, so this is all about electronic banking student, मतलब through the internet how you will going to do the banking transaction and all. So this is all about this part, electronic banking. Now the second one here, mobile banking. Mobile banking किसके ग्रुप का टॉपिक था? यस स्टूडेंट, मोबाइल बैंकिंग ऐसे किसी ने लिया हुआ है ना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग ऐसे? Yes, ma'am. Who did that? किसका, किसके ग्रुप का है वो? अवंतिका, योर? नहीं पता, नहीं याद आ रहे तुम लोगों को? वेरी गुड. ऐसे मेरा बेसिंग और बेसिक है. अच्छा, बेसिक. ओके 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 ओके. so we'll start with the mobile banking now. ये कितना हो रहा है टाइम? हाँ चलो, पहले देखते कितना बड़ा है, अदरवाइज मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ. पहले अटेंडेंस ले लो फिर तुम लोगों का, ऐसे करेंगे. फिर जितना आधा रहता है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं. हो चालेल. भेजेल ना, भेजेल. ओके चलो फटाफट. 1 to 10 में कौन कौन है? 7, 9. That's it. Only 7 and 9. Priyanka, Ma'am, two all of है. you have not given 10. roll number.
मैम रोल नंबर 2। अच्छा, विवेक इज ऑल्सो देयर, ओके। तूने एस बाय मैम रोल नंबर 10। कैसे लिखो पता है तुम लोग? पहले रोल नंबर लिखो एंड देन राइट योर नेम, डोंट राइट एस वाई बीबी एंड ऑल, वो सब एग्जाम के टाइम पे करो। ओके, रोल नंबर 2, उसके बाद में 7, 9, 10, करेक्ट? यस मैम। 9, अरे नहीं 8 को क्यों दिया मैंने? 7, 9, 10 को दिया। ओके, 11 to 20 में बोलो। आई कैन सी 15, 18, उसके अलावा कोई है? 16। हाँ बोलो। मैम 15, 16। 16 and 18. 16, ओके, रोहिदास को, रोहिदास, ओके। और कौन बेटा? दैट्स इट? Yes, ma'am. हाँ, अभी स्टार्ट फ्रॉम 21 to 30। 21 to 30, Mejabin is 20, Mejabin रोल नंबर 29, ma'am. हाँ, उसके बाद में 29 इज देयर, 29. और कौन है? उतने 30, 40 अमित, ओके, अमित इज देयर, यस। देन फ्रॉम 31 to 40 बोलो। 37 मैम। 36। 36, 37, अरे वाह, आज दोनों भाई आ गए, वेरी गुड। आता है आज, मतलब ऐसा नहीं ना एक आया एक नहीं। Ma'am 39. ओके, आलिया इज ऑल्सो देयर, यस। तफसीर एंड तनवीर किधर है दोनों? हाँ, घर पे बैठे हो किधर बाहर घूम रहे हो? ओके, यस मैम। 41 to 50 में कौन है बोलो? अच्छा, 41 to लास्ट तक जाओ। 47, ma'am. मैम 52। 49, ma'am. हाँ, 47, देन 52। 49, 42, उसके बाद में 48 और 50। अभी रीना है तो रेनू भी रहनी ही चाहिए, यस, रेनू इज देयर। ओके, और कोई है? सबका हो गया? ओके, ऑल करेक्ट। तुम लोगों में से किसके घर पे पीसी है, कंप्यूटर अवेलेबल है? कंप्यूटर विद इंटरनेट, हाँ ऐसा बोलो, कंप्यूटर विद इंटरनेट किनके घर पे अवेलेबल है? हम्म, किसी के भी नहीं? What? तो सब लोग मोबाइल पे ही अटेंड करते हो लेक्चर्स वगैरह? Yes, ma'am. Yes, ma'am. लेकिन अगर प्रोजेक्ट वगैरह बनाना है तो फिर कैसे करते हो? मैम हम आईटी का सब्जेक्ट ही फोन से, तो मतलब आईटी का सब्जेक्ट भी फोन से ही पढ़ते हैं मैम, एक्सेल सिखाती है। हाँ ना। नहीं फिर सुन, अभी ये प्रोजेक्ट वगैरह आएगा तो तुम लोग फिर कैसे पीपीटी बनाओगे? ग्रुप में मतलब देखेंगे किसी के पास रहेगा, उसके हिसाब से फिर प्लान करोगे? Yes, यस ma'am. मैम। ओके ओके ओके, ठीक है। मतलब थोड़ा सा तुम लोग के लिए डिफिकल्टी होता रहेगा ये सब, ठीक है, चलेगा। Okay, so we'll start with the mobile banking now. So mobile banking is a service provided by a bank or other financial institution that allows its customer to conduct the financial transaction remotely using a mobile device such as a mobile phone or a tablet. ये तुम लोगों के लिए एकदम बराबर है मोबाइल बैंकिंग, ओके? बिकॉज तुम लोग बोल रहे कि नहीं, हमारे पास बाकी कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है टू डू दिस काइंड ऑफ अ वे, so I think mobile is the only one that you will going to use. Then it uses the software usually called an app provided by the financial institution for the purpose. The earliest mobile banking services use SMS banking. With the introduction of smartphones with WAP enabling the use of mobile banking in 1999. It was first started by the European bank. But mobile banking के लिए I really don't think so. We really need an app here. हम लोग का ऐप की तो जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग गूगल पे भी जाते हैं मोबाइल के थ्रू ही, अगर हम लोग क्रोम से अगर गूगल में चले जाएंगे तो वहाँ पे भी जस्ट एसबीआई पर्सनल बैंकिंग टाइप करेंगे तो वहां से भी हम लोग कर सकते हैं।
एम आई राइट? ऐप होना चाहिए ऐसा कोई जरूरी तो नहीं रहता है। क्या है आप लोगों का ऑब्जर्वेशन इसके बारे में? इज इट रियली नीड दैट वी नीड टू कीप द ऐप विथ ऑन आवर मोबाइल? यस, आप लोगों का क्या observation है? आप लोग करते हो ना मोबाइल बैंकिंग या नहीं करते हो? यस मैम। हम्म। मैम गूगल ऐप से करते हैं। हाँ, मे भी वैसे ही होता है, मेरा भी गूगल से ही होता है। मतलब ऐप है लेकिन मैं नहीं उसको यूज करती ज्यादा, पता नहीं कि मैं वो सीधा गूगल से ही जाती रहती हूँ। ठीक है, सो आई थिंक इतना यहाँ पे लिखा है कि ऐप की जरूरत है, बट आई रियली डोंट थिंक कि ऐप होना ही चाहिए करके। देन व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग? इंक्वायरी ऑफ बैलेंस इन अकाउंट। यस, इमीडिएटली तुम्हें जितना जल्दी बैलेंस इन अकाउंट जानना है तो आपको इमीडिएटली वो मिल जाता है। इतना ही नहीं तो अगर आप लोगों के पास जीपे वगैरह है तो वो अगर आपके अकाउंट के साथ कनेक्टेड रहेगा, so there also you are to ask like how much is the balance, and immediately you will get an answer कि कितना बैलेंस रहेगा करके। मिनी स्टेटमेंट अवेलेबल होता है लास्ट 5 ट्रांजेक्शन का। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज ये मेरा भी ऑब्जर्वेशन है। अगर मुझे पूरा साल भर का स्टेटमेंट चाहिए तो मुझे वहाँ पे मतलब वो भी ऑनलाइन में देख सकती हूँ, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे अगर मुझे देखना है क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ है तो आई मे गोइंग टू सी ओनली द लास्ट 5 ट्रांजेक्शन। This can only we can see. Then transfer of funds to account with SBI and other banks. Yes, we can immediately do the transferring of the funds from one bank to other bank. Then IMPS, mobile to mobile transfer. Okay, this can also happen. Then mobile to mobile transfer said here, but I think it should be account to account. Okay. The request for issue of checkbook, yes, that also we can get it. Then inquiry regarding demat account, yes, demat account भी आप online open कर सकते हो, mobile के through ही open कर सकते हो. Then pay utility bill, yes, electricity bill, telephone bill, that also you can pay with the help of mobile banking, mobile. Then merchandise payment, okay, ये भी आप कर सकते हो. Mobile top up, yes, recharge करना भी आप लोग कर सकोगे. Top up of DTH connection. What is DTH connection? Can anyone tell me here? What do you mean by the DTH connection? Yes. मैम सेट टॉप बॉक्स रिचार्ज करते हैं। अच्छा, ये अपना केबल का बात कर रहे हैं क्या वो लोग एक्चुअली केबल के बारे में? यस आई थिंक मैम। हाँ, डायरेक्ट, हाँ, उसका फुल फॉर्म दिया देते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन। अच्छा, मतलब टीवी, टाटा स्काई वगैरह, मतलब ऐसा वाला। ओके ओके, दैट इज DTH। अच्छा, मुझे पता लग गया, डायरेक्ट टू होम टेलीविजन। ओके, तो उसका जो पेमेंट नहीं तो रेंट वगैरह भी पेमेंट करा तो हम लोग उसके थ्रू ही कर देते। देन पेमेंट ऑफ SBI लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, यस, इवन प्रीमियम वगैरह भरना है, जरूरी नहीं कि इट इज ओनली द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बाकी चीजों का भी कोई भी इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग वैसे भर सकते हैं थ्रू मोबाइल ऐप। ओके, देन चैलेंजेस फॉर अ मोबाइल बैंकिंग। एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोबाइल हैंडसेट इज स्टिल लिमिटेड इन रूरल एरिया। लगता है आप लोगों को ऐसा होता रहेगा। अभी जितना मैंने ऑब्जर्व किया है कि रूरल एरियाज में भी सबके पास बहुत अच्छे अच्छे मोबाइल रहते हैं। मतलब मैंने अभी देखा नहीं कि मतलब ऐसे वो बटन वाला अपना मोबाइल रहता है ना, कि वैसा वाला अभी बहुत कम लोगों के पास है। एवरीबडी आर यूजिंग एंड्रॉइड मोबाइल फोन, though they are in the rural areas, but still their access of 3G service for fast functioning is still not available to many people in India. Yes, I cannot give assurance, शायद नहीं रहेगा 3G सर्विसेज सबके पास तो, लेकिन जैसे जियो वगैरह आ चुका है तो मे भी पॉसिबल रहेगा। ओके, as we most, मैम हाँ बोलो, मैम दीपिका को अनम्यूट करने के लिए। क्या क्या? दीपिका को अनम्यूट करने के लिए ना मैम, बहुत वॉइस आ रही है। दीपिका, ओके ओके, रुको मैं सबको ही mute कर लेती हूँ। Okay, next say, as with most internet connected device as well as mobile telephony device, cyber crime rates are escalating year on year. This is very true. ये भी challenge हो गया mobile banking के लिए. Then the types of cyber crime which may affect mobile banking might range from unauthorized use while the owner is using the toilet to remote hacking or even jamming or इंटरफेरेंस वाया द इंटरनेट और टेलीफोन नेटवर्क डेटा स्ट्रीम। हाँ, ये सब साइबर क्राइम मतलब मोबाइल बैंकिंग में होता ही ये सब। देन मोबाइल बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज नॉट इजी टू हैंडल exponential growth of the customer base.
नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ है करके. I think through mobile banking we can do many functions of many services we can utilize of banking. So challenges, it can be challenges to the bank, but अभी तक मैंने इसको कभी प्रॉब्लम में फेस नहीं किया हुआ है. इसके लिए आई थिंक बाय माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि नहीं, ऐसा नहीं है. Then with mobile banking, the customer may be sitting in any part of the world through any time, anywhere banking, and hence bank needs to ensure that the systems are up and running in true by 24 by 7 days. Yes, this is true actually. कि मतलब उनको उतना अपने सिस्टम को मतलब बेसिकली अगर वो बैंक है तो उनको अपने सिस्टम को उतना अपडेटेड रखना पड़ता है कि कौन से भी टाइम पे कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करना चाहे तो वो वहाँ पे पॉसिबल हो. अगर हमें ऐसा लगता है कि नहीं SBI अलाउ नहीं कर रहा है तो थोड़ा सा क्या हो जाता है कि कस्टमर का उनके ऊपर का ट्रस्ट कम हो जाता है. तो इसके लिए ये उनके लिए चैलेंजेस जैसा ही है बैंकों की, ये सब एकदम अप टू डेट रखना करके. So here we cannot see the disadvantages, but the kind of a challenges we can say for the banking. Okay, for the banks it will be the challenges. तो मुझे हम लोग disadvantage के point of view से नहीं देखेंगे, लेकिन बैंक के लिए कैसा कितना अलर्ट रहना पड़ता है, कितना अपडेटेड रहना पड़ता है, it is all on that basis. Okay, so then so that's it for today. It shows less than 1 minute. Immediately lecture खत्म हो जाएगा. Okay, then the remaining internet banking and all that we will going to see it on the next lecture. Okay, shall I end the lecture, student? Yes, ma'am. Okay, bye.